Hello everyone, can you all hear me? Am I audible everyone? Hi Nikhil. Nikhil, have you joined for first time our session? Hi Shivansh. Hi Shiva. So we will start our new session today, everyone. I hope everybody has understood yesterday's session. Those who have not understood, they can go and watch it and they can ask their doubts. Anything if they are having anything, they can ask here. They can upload their doubts. So this is Vivek Mishra. How are you all? कैसे हैं आप लोग सब? Hi. Yeah. Hi Akhilesh. Okay. So this is our Noon Academy platform. We provide worldwide e-learning. This is an worldwide e-learning platform. We provide live lectures, doubt clearing sessions, doubt clearing on your group, where you can post your doubt clearing by unmuting your mic. Okay, so I have launched mathematics crash course here. So in the last class, Shiva, what is this? Minus 330 and 390. Here, what to do? First term, second term, or big number, small number? करना क्या है, मतलब पूछा क्या है क्वेश्चन में? Determine whether they are coterminal angles. So yeah, for coterminal angle, what you have to do? You have to subtract both. One angle में से किसी को किसी से भी subtract करो, वैसा नहीं कि big में से small. समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? You can subtract any number from any number, like minus 330 minus 390. Whatever you are getting, is it multiple of 360? Just check. Are you getting here 720? So it is not necessary that कि तुम bigger में से smaller subtract करो. तुम किसी को भी किसी में से भी subtract करो. उससे फर्क नहीं पड़ता. Okay? या चलेगा शिवा. आपको कितना आ रहा है? 0 माइनस 0 0. ये कितना हो जाएगा? 12. ये हो जाएगा 720 माइनस. सो नाउ 720 इज मल्टीपल ऑफ 360. therefore it is coterminal. Okay, because whatever you got, it's the multiple of 360, and whenever any angle is multiple of 360, it's called as coterminal angle. Clear, Shiva? Can we move forward, students? Okay, चलो. तो जैसा कि मैंने कहा था, कल का हम लोग एक्सटेंशन आज सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. क्या दिया हुआ? tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा. कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया था, राइट? ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर से, याद है?
ट्रिगो 2 चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 आपके मैथ 1 का, उसका हम लोग ने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया था और उसमें फर्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे, अभी हम लोग उसमें 6th क्वेश्चन पे हैं। So tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta is equals to tan 8 into tan 5 into tan 3 theta. Let us start this question. Let us consider LHS. सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, हम ले लेते हैं यहाँ पे LHS। इसका LHS देखो कैसा है कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। आप मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 8 थीटा, हाँ या ना? ये एक स्पेशल सम है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। आप इसमें देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा एंगल का है इस पूरे क्वेश्चन में? प्लीज टेल इट इन द चैट बॉक्स। सबसे बड़ा एंगल 8 थीटा है, तो आप वही वाला ले लो और उसको क्या करो मालूम है, उसको बाकी के दोनों छोटे वाले जो एंगल है ना उसमें स्प्लिट कर दो। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना 8 थीटा को 5 थीटा प्लस 3 थीटा। यस और नो? Others, please reply. If you are not understanding, please ask in the chat box. Do not hesitate. नेहा, कल आप सेशन में से चले गए थे बीच में से। So here we have 8 theta. We can write 8 theta is 5 theta plus 3 theta. Now, what do we have with 8 theta? We have a trigonometric function tan. So taking tan on both sides. So that will be tan 8 theta is equals to tan 5 theta plus 3 theta. Is it clear till here? Is this step clear? Okay. Now what we can do students, see we have tan, if you all remember last time का हम लोग ने formula जो हम लोग ने लिखा था compound angle का, tan A plus B is what? Tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Tan A plus B is what? Tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. So what I'm going to do, I'm going to apply same formula over here. Tan 8 theta is equals to tan 5 theta plus 3 theta है ना, मैं यही फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करूंगा. So it becomes tan 5 theta, that is tan A, this is my A, this is my B, tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Is this step clear? If it is clear, press understood button. नहीं clear तो ask in the chat box. Okay. Now see students, what I'm going to do, I'm going to do cross multiply now. I'll send this on the other side. So it becomes tan 8 theta 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta is equals to tan 5 theta plus tan 3 theta. Now what we can do, we can cross multiply this inside. I mean not cross multiply, just multiply inside this bracket. So tan theta will go and get multiplied with 1 and it will also get multiplied with these two terms. It is actually one term, not two terms. It's just one term. Tan theta into tan 3 theta is one term and 1 is the another term. So tan theta into 1 will be what? Tan theta, tan 8 theta minus tan 8 theta into these will be, these terms will be what? Tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta is equals to tan 5 theta plus tan 3 theta will remain as it is. Is this step clear? What I did, मैंने जो tan 8 थीटा था उसको सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ और इन
ये वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई हुआ। अब कोई कोई लोग क्या बोलते हैं कि सर tan 5 थीटा भी लिखो और tan 3 थीटा भी लिखो, और tan 8 थीटा एक बार और लिखो tan 3 थीटा के साथ, दो दो बार tan 8 थीटा। ऐसा थोड़ी ना है, ये तो दोनों मल्टीप्लाई ही ऑलरेडी, ये सिर्फ उसके साथ गया मल्टीप्लाई हो गया, और क्या। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, सी, एज पर रिक्वायरमेंट हमको tan 8 इंटू tan 5 इंटू tan 3 थीटा एक साथ चाहिए, तो इसको उधर भेज दो और इन दोनों बंदों को इधर लेके आ जाओ। व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा को इधर लेके क्या हो तो क्या हो जाएगा, माइनस tan 5 थीटा, और tan 3 थीटा को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan 3 थीटा। और ये पूरा, ये जो पूरा ये तीनों, ये जो तीनों भी यहाँ पे tan दिख रहा है, सब एक तरफ उस तरफ चले जाएंगे, तो इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta. Can you see LHS is equal to RHS? Therefore, we have proved na LHS is equal to RHS. Yes or no? Neha, have you understood? Akhilesh, have you understood? Nikhil, have you understood? In last step, what I did, you know, see, tan 8 theta, tan 5 theta और tan 3 theta का जो मल्टीपल है ना, उसको दूसरे तरफ भेज दिया, इधर भेज दिया। तो इधर माइनस था, दूसरे तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये देखो, और इन दोनों को मैं इधर लेके आ गया, तो इधर प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस हो गए। क्लियर? Okay, let's move forward. Okay, now next question. Cos 27 plus sin 27 upon cos 27 into sin 27. We want answer in tan 72. See this very carefully. Let's consider LHS of this. So cos 27 plus sin 27 upon cos 27 minus sin 27. चलो आप लोग बताओ क्या करूं, पहला स्टेप, tan में आंसर चाहिए तो हमको साइन और कॉस को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27। क्यों मैंने डिवाइड किया, क्योंकि साइन के नीचे जब तक कॉस नहीं आएगा, साइन बाय कॉस tan नहीं आएगा, और फाइनल आंसर अपने को किसमें चाहिए, tan में चाहिए। ये स्टेप समझ में आया? बोलो, इज दिस स्टेप क्लियर एवरीवन? ओके, सो लेट अस डिवाइड इट। cos 27 अपॉन sin 27 प्लस sin 27 अपॉन कॉस्ट, एक मिनट, किससे डिवाइड करने बोला, cos 27 से ना, सॉरी, cos 27 upon cos 27 plus sin 27 upon cos 27, the whole divided by cos 27 upon sin 27 plus sin 27 upon cos 27. सबको मैंने cos 27 से डिवाइड किया. So now you can see here in the numerator what will happen. Cos 27 will get cancelled and you will get 1 plus sin 27 upon cos 27 is what? Tan 27. The whole divided by, this 2 will get cancelled.
Is this step clear, students? Okay. Now just tell me what is tan 45? What is tan 45? That's right, Neha and Shiva. Tan 45 is 1. So in place of 1, can I write tan 45? One minus. Now again here can I write 1 into, which can be written as tan 45, tan 27. सी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ मालूम है, मैं यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला रहता था ना, याद होगा अगर आपको। tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या रहता था? tan a प्लस बी का फॉर्मूला रहता था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैं वही बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये जो 1 है उसकी जगह पे लिखा tan 45, tan 27 को एज इट इज लिखा, यहाँ पे 1, और इधर मैंने एक 1 छोटा सा कंसीडर किया, क्योंकि 1 इंटू 27 तो tan 27 ही होता है, तो उस 1 को मैंने फिर रिप्लेस कर दिया tan 45 से, क्योंकि 1 मतलब tan 45 होता है। अब आप मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे दिख रहा है और ये जो यहाँ पे दिख रहा है, क्या दोनों एक ही टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है? एक ही जैसे दिख रहे हैं क्या दोनों? ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, क्या दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं? Yes, same. So this is of form tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, which is what? Tan A plus B. Tan A plus B. So tan 45 plus tan 27 is what? Tan 72. Done. Is equals to RHS. समझ में आया तो एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में पूछो, और बिंदास पूछो। ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा, दुनिया क्या सोचेगी। सब जाए इधर उधर, तुम अपने काम के हिसाब से सोचो कि इसमें तुम्हारा फायदा है। Done everyone? Can we move forward? Okay. Now again the next question. This is very important. Will you all try this? Should I give you 2 minutes to try this? Please say yes or no in the chat box if you want me to give you some time to try this. Only Shivans is replying. ऐसा मैंने एक क्वेश्चन कराया, वो जो tan 8 वाला क्वेश्चन था ना, वही है ये। Okay, just give it a try everyone. Let's see. Akhilesh, today you are not replying. Prithviraj, Tejas, are you there in the session? सबसे पहले इसमें क्या करो मालूम है, देखो आपको जो यहाँ पे 1 दिया है ना, उसको tan 45 मान लो, और वैसे भी 35 प्लस 10 क्या होता है? 45 ही होता है। उस तरह से इसको सोचो। आप यहाँ पे लिखो tan 45
और फिर उसको लिखो tan 35 plus 10. So this was the hint. Now apply formula on the right hand side. ये जो right hand side है उसमें formula apply करो tan a plus b का, and just tell me if you are able to prove it. Are you all able to solve it, everyone? Is it possible to get the answer? So tan 35 plus 10 is what? Tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर. Now what is tan 45, everyone? Tan 45 is nothing but 1. जहां पे ये tan 45 दिख रहा है ना, इसकी जगह पे आप 1 लिख दो. So 1 into 1 minus tan 35 into tan 10 is equals to tan 35 plus tan 10. अब ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, उससे कोई चेंज नहीं होगा. 1 will remain, everything will remain same. So you will have 1 minus tan 35 into tan 10 is equals to tan 35 plus tan 10. Now you send this on the other side. तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा. 1 is equals to tan 35 plus tan 10 plus tan 35 into tan 10. So yes, you have proved it. LHS is equal to RHS. That is tan 35 plus tan 10 plus tan 35 into tan 10 is equals to 1. कितने लोग को आया था ये आंसर? बोलो भाई. नेहा को आ गया था, और किसको आ गया था? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. बी इंटरैक्टिव. अंडरस्टूड? ओके. आई एम आस्किंग कितने लोग को ये आ गया है, ये क्वेश्चन अपने आप से आया कितने लोग को? खुद से सॉल्व करना है. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड देन स्टूडेंट्स. चलें आगे बढ़े. Okay, now this is one of the very important question again. After this, we will finish this exercise. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में 11th के. साइन ए इन लोगों ने दिया हुआ है -5/13, राइट? सो साइन ए इज where a is what? Between pi to
3 pi by 2. Which means which quadrant? Pi to 3 pi by 2 means which quadrant? Tell me. That's right, Neha. Shivansh. Sorry, Shiva. Akhilesh. Right answer. So A is between pi to 3 pi by 2. So A lies in third quadrant. दूसरा क्या दिया हुआ है? Cos B दिया हुआ है 3/5. और ये कहाँ लाई कर रहा है? 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई के बीच में. मीन्स विच क्वाड्रेंट? Which quadrant is this? That's right, students. Neha, very good. Fourth quadrant. Okay. अब आप देखो क्या कर सकते हो. आपको साइन ए प्लस बी चाहिए, तो आप कोई तो मेरे को अभी अनम्यूट करके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ. कौन बताएगा? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा. कौन करेगा? चलो बोलो, जल्दी बोलो. डू नॉट हेजिटेट. मे लेट इट बी रॉन्ग और राइट. आई करेक्ट यू आउट. बट लेट्स पार्टिसिपेट. हु विल कॉल? अखिलेश, आप करोगे? ओके. यस अखिलेश. शिवांश, मैं आपको दूसरा पूछता हूँ. जस्ट आपका कॉल आ गया अभी. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक ना हो? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. वेरी गुड. शाबाश. I'll end this call. Very good, Akhilesh. Yes, शिवांश, now you call. अब आप मुझे बताओ शिवांश कि इसमें जो है साइन ए प्लस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. एकदम परफेक्ट फॉर्मूला बोला अखिलेश ने. आप मुझे बताओ इसमें क्या चीज मेरे पास है वैल्यू, कौन सी चीज की वैल्यू है और कौन सी चीज की वैल्यू नहीं है. ए और कॉस, साइन ए और कॉस बी की वैल्यू है. मतलब आप कह रहे हो कि सर साइन ए और कॉस बी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं है ना, कॉस ए और साइन बी की वैल्यू नहीं है, राइट? यस सर. तो जिसको मैंने ऐसे अंडरलाइन किया, डबल अंडरलाइन जिसको किया. तो क्या आप मेरे को एक बात बताओ शिवांश, अगर मेरे पास साइन ए है तो क्या मैं कॉस ए निकाल सकता हूँ? यस सर. यस सर. बोलो. आपको याद है वो वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? शिवांश? यस सर. हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. हाँ. तो अगर आपके पास साइन ए है तो आप कॉस ए निकाल दोगे ना, मतलब. यस सर. हाँ हाँ ठीक है, बीच बीच में आपका आवाज चले जा रहा है. अगर आपके पास कॉस बी है शिवांश, तो क्या आप साइन बी निकाल सकते हो? यस सर. सेम फॉर्मूला. सेम फॉर्मूला. That's right. Very good. Sabash. I'll disconnect your call. Very good. So everyone, see here, we have sin A, we want cos A. So simply we will use this formula, sin square A plus cos square A is equals to 1. What is value of sin A we are having? We are having sin A as minus 5/13. So मैं यहाँ पे डाल दूंगा minus 5/13 whole square plus cos square A is equals to 1. Minus 5/13 whole square is what? 20. Minus का square plus हो जाता है. So 25 upon 169 plus cos square A is equals to 1. 25/169 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है ना, इधर प्लस में, दूसरे तरफ जाएगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा.
So cos square A is equals to 1 minus 25 upon 169. Now 169 will go and get multiplied with 1, जिसको हम लोग LCM बोलते हैं. So 169 ones are 169 minus 25 upon 169. अब इसके बाद जो है क्या मिलेगा, cos square A is equals to 169 minus 25 कितना होता है, 169 minus 25 होता है 144 upon 169. अखिलेश यू हैव सेंट राइट आंसर, वेरी गुड अखिलेश. सो cos स्क्वायर, अभी अपने को देखो cos चाहिए ना, cos स्क्वायर थोड़ी चाहिए, तो cos स्क्वायर A आ चुका है. cos के लिए तुम क्या करोगे, आप रूट ले लोगे, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 144 अपॉन 169, और 144 का रूट होता है 12 अपॉन 169. अब इसमें से प्लस वाला लूं कि माइनस वाला लूं, तो तुम बताओ ए कौन से क्वाड्रेंट में है. ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, याद करो. ऑल सिल्वर टी कप, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होगा ऑब्वियसली. तो देयरफॉर कॉस ए इज नेगेटिव. ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कॉस ए इज नेगेटिव. देयरफॉर हम लोग इस प्लस माइनस में से कौन सा वाला सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस. अच्छा एक चीज मैंने गड़बड़ लिख दिया, 12 अपॉन 13 आएगा ना, 169 नहीं है. तो अभी अपने पास cos A आ गया. अब मैं नेक्स्ट क्या निकालने वाला हूँ, cos A आ गया, इसको मैं ऐसे सर्कल में डाल देता हूँ. नेक्स्ट मुझे sin B निकालना है. sin B के लिए मैं cos B वाले को कंसीडर करूंगा. सो sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B इज इक्वल्स टू 1. sin स्क्वायर B तो नहीं है, पर cos स्क्वायर B की वैल्यू अपने पास इधर पड़ी हुई है. कितनी पड़ी हुई है, 3/5. फिर उसके बाद sin स्क्वायर B, ये कितना हो जाएगा, 9/25 इज इक्वल्स टू 1. 9/25 दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या आएगा, sin स्क्वायर B इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25. 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 25 वन सा 25 माइनस 9 अपॉन 25, ये हो जाएगा 16 अपॉन 25. दिस इज sin स्क्वायर B. नाउ वी वांट sin B, so therefore sin B will be what, we will take square root. So 16 का रूट 4 और इसका 5. Okay, now you all have to tell me students, is it positive or negative? This sin B will be positive or negative, because we are in fourth quadrant. So what will it be, positive or negative? So B is in fourth quadrant. Okay, so sin B will be negative. Therefore, sin B is equals to what? Minus 4/5. Is it making sense, everyone? एक बार ये सारी वैल्यूज लिख लो, नेक्स्ट पेज में अपने को काम आएगी. फिर नेक्स्ट पेज पे मैं पूछूंगा आप लोग सभी, नेक्स्ट पेज ओपन करूंगा ना लिखने के लिए, तो आपसे पूछूंगा मैं. लिख लिया सबने, ये जो वैल्यू है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए कॉस बी की, कॉस ए साइन बी की वैल्यू. लिखा सबने, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे चलें. नेक्स्ट पेज पे चलें स्टूडेंट्स. यस, ओके. Yeah. So now we need what? We need sin A plus B. So what will be formula for sin A plus B? It will be simply sin A cos B plus cos A sin B. चलो, what is sin A? Tell me फटाफट. कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो बोल सकता है. अच्छा, 5/3. What is value of cos B?
3/5 plus cos A minus 12/13 sin B चलो ठीक है बस तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 3 जा 15 ये तो कट हो जाएगा 5 और 5 कट गया 3 और 5 कट गया खाली 1 बचा समझ रहे हो 1 बच गया इधर और इधर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया ये देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 12 4 जा 48 अपॉन 65 65 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 1 जा 65 प्लस 48 अपॉन 65 व्हाट इज 65 प्लस 48 स्टूडेंट्स मेरे को ऐसा लग रहा है ये वैल्यू किसी ने रॉन्ग बताई हुई है ये वैल्यू आप लोगों ने रॉन्ग बताई है अब ये बैक स्लाइड ना ओपन ही नहीं होएगा अभी मैं इस पे ये देखो बैक स्लाइड पे जाओ ना तो ओपन ही नहीं होता है क्या मालूम क्या प्रॉब्लम -5/13 है ना हाँ वही तो साइन ए wait it is just loading just give me 1 minute finish off with this question so you have -5/13 so obviously it will not cancel now -5/13 is what -5 into 15 is -15 upon 65 so -15 plus 48 upon 65 this will be what -33 upon 65 so this is your final answer if they ask you find cos A plus B also then what you will do same thing you already have all the values just write the formula cos A cos B minus sin A sin B cos A की वैल्यू कितनी है cos A की वैल्यू है -12/13 cos B की वैल्यू कितनी है 3/5 sin A की वैल्यू कितनी है -5/13 और sin B की वैल्यू कितनी है -4/5 अब इनको मल्टीप्लाई कर दो minus into minus will become plus 20 65 so -36 minus 20 is what -56 upon 65 clear students is this 100% clear so with this question we have finished with exercise 3.1 okay exercise 3.1 is completed
Now let's move to next. Should I change this page? Is this noted down? Okay. Now for the exercise 3.2, allied angles is very, very important. So allied angles, if you all remember, I have already taught you many, many times. Do you all remember that 90 minus theta, 90 plus theta? Yes. So this is 0 degree, this is 90 degree, this is 180, this is 270, this is 360. In first quadrant, all are positive. In second quadrant, sine, third, tan, and here cos is positive. So if you take sine 90 minus theta, sine 90 plus theta, sine 180 minus theta, sine 180 plus theta, sine 270 minus theta, sine 270 minus theta, sine 270 plus theta, then sine 360 minus theta, and sine 360 plus theta, and sine of 0 minus theta, that is sine of minus theta. Just tell me, this is which quadrant? Sine 90 minus theta is which quadrant? Someone unmute the mic and tell me. Who will do that? Radhika, will you unmute the mic? Radhika, are you there? Because Akhilesh and Shivansh has already done. Anyone else? Who else is there? Shiva, will you do this? Okay, you are telling me in the chat. Okay, so this is first quadrant. This is which quadrant? (180 minus theta) again second quadrant. 180 plus theta third quadrant. 270 minus theta which quadrant? Third quadrant. 270 plus theta. 270 plus theta will take you to fourth quadrant. Then 360 minus theta again fourth quadrant. This is which quadrant? Fourth quadrant. No, first quadrant. 360 plus theta. 360 plus theta, first quadrant, and sine of minus theta is again fourth quadrant. Now, as per quadrant, we will write we will write the answers if it is positive or negative. I mean, sine is positive or negative. So, in first quadrant, sine is positive. In second quadrant, sine is again positive. In second quadrant, sine is positive. Third quadrant, sine is negative. In third quadrant, sine is again negative. In fourth quadrant, sine is negative. Then again, this is fourth quadrant, so sine will be negative. This is first quadrant, so sine is positive. Sine of minus theta will be again negative. Is this step clear? Students, you can unmute and answer. That will be more better, you know, it will be like, that will create more level of interest. Chalo, let's see who will call. सोचो ना, आप लोग जैसे क्लास में बोलते हो, अगर अभी भी बोलो तो वो दिमाग में बैठ जाएगा. ऐसे एकदम ऐसे डर के रहने की जरूरत नहीं है. कुछ रॉन्ग बोल दोगे और क्या होगा इससे ज्यादा.
लेट्स सी हु विल कॉल। 12th वाले बच्चे तो एकदम ऐसा 10-10 बच्चों का रिक्वेस्ट लगा रहता है इधर, 10-10 बच्चों का रिक्वेस्ट, एक को अनम्यूट किया, एक को म्यूट किया, एक को अनम्यूट किया, ऐसे चलता रहता है पूरा। आप लोग कोई करते नहीं हो, कोई पता नहीं, इंटरेस्ट तो है लेकिन ये एक चीज में इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स सी हु विल कॉल, आई एम वेटिंग, पोपट मत करो मेरा। नोबडी। अच्छा, सिर्फ आप लोग पढ़ोगे, कुछ टीचर की बात नहीं मानोगे। चलो कोई बात नहीं, एज योर विश। 180, 360, 0. Whenever we have 180, 360 and 0, sine will remain sine, cos will remain cos. And whenever you have 90 and 270, so for 90, 270, sine will change to cos. And if we have question in cos, it will change to sine. So we have 90 here, sine will change to cos, cos, sine, sine. Whenever we have 80 and 360, sine will remain sine, cos, cos, sine, sine, and again sine. Is this clear? It is clear, students? Who has not understood? Anyone? Someone has expressed, explain more. What is your doubt? Just tell me. Whenever I was having 90-degree angle, I wrote sine का answer as cos. And whenever I have 180-degree का angle, I'll write sine का answer as sine. नेहा, आपको नहीं समझा क्या? Hi Manjeet. Understood? Okay. So let us move forward then, students. ये बहुत मस्त ट्रिक है, देखो तुमको पूरा ये समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, राइट ना, जो भी मैंने कराया। So we have to find value of sine 690 now. Okay, let us start this. I'll write angle over here. How many angles? Let us see, we can accommodate 0, 90, 180, 270, 360. If I move forward, 90 90 बढ़ता जाएगा, 450, 540, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 630, 720, 810, 900. अब आप लोग को याद होगा, मैंने जस्ट अभी कहा कि जब जब हम लोग एक्स एक्सिस का एंगल लेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, जब जब हम लोग एक्स एक्सिस का एंगल लेंगे, साइन का आंसर साइन रहेगा। यस और नो? फॉर एक्स एक्सिस एंगल साइन का आंसर साइन रहेगा। यस और नो? ओके, अब यहाँ पे 690 है, साइन 690। आप मुझे बताओ साइन 690 कौन से एंगल के नजदीक है, इसमें प्रेफरेबली एक्स एक्सिस का एंगल सजेस्ट करो। साइन का आंसर साइन रहता है। सो 720 आप बोल सकते हो कि 720 इज द नियरेस्ट एंगल। दैट्स राइट अखिलेश एंड शिवांश।
So 720. Now what should I subtract from 720 so that mathematics remain balanced? क्योंकि मैं 690 की जगह पे 720 नहीं लिख सकता ना, कुछ तो मुझे subtract करके लिखना पड़ेगा ताकि overall value same रहे. Okay. So this is 720 minus 30. Now can I write it like this? 3 into 360 minus 30. Not 3, actually 2. अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? अब ये फॉर्मूला हो गया साइन n 360 माइनस थीटा. n को छोड़ दो, ये साइन 360 माइनस थीटा के जैसा हो गया ना. थीटा मतलब एनी एंगल. So what was sine 360 minus theta? Just tell me. Here, all silver tea cup. Here is 360. So sine 360 minus theta. Which quadrant? Fourth quadrant. So fourth quadrant में sine क्या रहता है? That's right, नेगेटिव रहता है. और मैंने क्या बोला, जब जब आप x एक्सिस का एंगल लोगे तो साइन का आंसर क्या आएगा? जब जब आप x, क्योंकि 360 और 720 ये सब x एक्सिस पे लोकेटेड है, साइन का आंसर साइन क्या आएगा? सेम आएगा, मतलब साइन का आंसर साइन ही आएगा. So sine 360 minus theta is minus sine theta. And what is your theta? Theta is 30 degree. So you will write minus sine 30. Now what is sine 30? Sine 30 is half. So this is your final answer. Make note of it and try the next question, students. देखते हैं sin 495 कितने लोग को आता है. I'll give you 2 minutes to try this. Take it as a breakout question. Sin 495. Let's see how many of you are able to solve it individually. Are you all solving this, students? Okay. सो 495 के लिए आप इधर देखोगे कौन सा एंगल एक्स एक्सिस पे उसके नजदीक है. 495 के लिए कौन सा एंगल नजदीक है? फाइव 540 माइनस क्या करना पड़ेगा? 540 माइनस 45. Now again this is on x axis. So whenever it is on x axis, whenever it is on x axis, same answer comes and we have to just check the sign. So sin 540 इधर है ना, sin 540 minus theta brings you to the second quadrant. 540 minus theta brings you to the second quadrant ना. राधिका नहीं समझा आपको? साइन 540 ऐसे आया, माइनस थीटा की तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना. समझा राधिका आपको? हाँ, ओके. So sin 540 minus 45 brings you to the second quadrant. Second quadrant में sin is positive and 540 is on the x-axis. So answer remains same. So sin 45. So that gives you 1 by root 2 only. This is your final answer. Those who have understood, put yes in the chat box. पक्का समझ में आ रहा है ना? बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना? शिवांश आपने -1 कैसे लिखा है? मैं समझा नहीं क्या चीज का लिखा है.
मिस्टेक है क्या? ओके ओके शिवांश. Now let's move to, shall I go to the next page everyone? चले नेक्स्ट पेज पे. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग लेक्चर को इंटरेक्टिवली क्लियर करते जा रहे हो धीरे धीरे. ओके वेरी गुड. लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. Okay, now I want everybody to try this as I will not be solving this. I want you all to try it. पहले आप सोचो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है. पहले वो माइनस का बंदोबस्त करो. tan ऑफ माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्या साइन होगा, चेंज होगा कि नहीं. फिर उसके बाद 690 का एडजस्टमेंट देखना. अखिलेश मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई. रिप्लाई लॉगिन किया फिर भी स्कोर विजिबल नहीं हुआ, मतलब अब हुआ. अच्छा अच्छा स्क्रीन विजिबल. ओके समझा समझा. नेहा सेंड द आंसर. व्हाट अबाउट अदर्स? वेरी गुड नेहा, शाबाश. So tan of minus theta is what? It comes to fourth quadrant. Fourth quadrant में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस tan थीटा आ जाएगा. So this will be minus tan 690. Now what you can do? You can adjust the angle. चलो नेहा आप बताओ क्या एंगल लूं. शिवांश has also sent the answer. 720 minus 30. 720 कौन से एक्सिस पे आता है? 720 आप लोग ने कौन से एक्सिस पे लिया हुआ है? हर बार आप लोग एक्स एक्सिस ही सेलेक्ट कर रहे हो राइट, क्योंकि उस पर आंसर चेंज नहीं होता, वही सबसे अच्छा है. तो आंसर, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? क्वाड्रेंट कौन सा आएगा इसका? फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पे 720 है तो 720 माइनस 30 विल ब्रिंग यू टू फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और tan 30 आप लिख दोगे. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और tan 30 1/√3 होता है. बात खत्म. दिस इज योर आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? So have you all understood today's session? Just tell me. How was it? कैसा था सेशन आज का? सेशन कैसा था?
सब कुछ अच्छे से समझ में आया? अच्छा चलो, वेरी गुड, शाबाश। अभी आप जो है क्या करो मालूम है, आपका जो होमवर्क ले लो थोड़ा सा। होमवर्क में क्या है मालूम है, एक्सरसाइज 3.1 का रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। It is very important that you all solve remaining questions, students. It's very, very important. That is what is called as solving new questions. और अभी आज का आज ही बैठ के सॉल्व करना। आज अभी क्या करो, आपका अभी 5 से 6 लेक्चर हुआ ना, 6:30 को बैठ जाओ और 6:30 को बैठ के पूरा सॉल्व कर डालो। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर डालो और उसमें जो भी डाउट्स आ रहे, जो भी 1 2 3 10 15 20 जो भी आ रहा है, आप उसको ना ग्रुप पे पोस्ट कर दो। यू विल गेट द सोल्यूशन। आई सेंड द सोल्यूशन। पर आप क्वेश्चन का ना पिक्चर सेंड करो, क्योंकि कुछ इधर उधर लिख के सेंड करोगे तो गड़बड़ हो जाता है। ओके, so I'll be ending this session. Just rate the session as great session. Okay, bye Shiva, welcome, bye bye everyone. See you all tomorrow at 5 p.m. 5 p.m. अखिलेश उसको डाउनलोड कर लो ना, ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल पे जाके टाइप करो ग्रेड 11 मैथ टेक्स्ट बुक पीडीएफ। गूगल मैथ टेक्स्ट बुक पीडीएफ और एमएच बोर्ड लिख देना बस। बाय निखिल, बाय राधिका। ओके, आई विल सेंड इट। आप गूगल पे ना बस इतना टाइप कर दो ग्रेड 11, ठीक है, एमएच बोर्ड मैथ टेक्स्ट बुक। आपको 2 बुक्स मिल जाएंगी, एक मैथ 1 होती है और एक मैथ 2 होती है। एक ऑरेंज कलर की है और एक ब्लू कलर की। ओके, नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताओ। ओके, यस यस शिवा, आई विल बी ओनली टीचिंग मैथ 2। सो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड प्लीज स्टडी। जो होमवर्क दिया उसको प्लीज करो, आपको बहुत और मजा आएगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो धीरे धीरे सब भूलने लगोगे। बाय, टेक केयर।